Good morning once again, everyone. In the last class, we have completed the first exercise, right? And I had given you question number 3 as homework. So let me know if you have any doubt in any of the question. We were doing derivative of composite function, that is chain rule of derivative. Rest all questions we have done. No doubt. Question number 320. One of the student having doubt. What is there in question number 320? Why you are not able to solve this question, Prem? This is very simple. This is u upon v, that's all. I will explain you orally, try to understand. See, if this is u by v, then what will happen? Yes, you will take v कॉमन, तो रूट वाला फर्स्ट कॉमन हो जाएगा, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव भी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? तो समथिंग रेज टू n है, तो पहले होगा 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 3 और फिर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव, अंदर वाले का डेरिवेटिव विच इज 2x, राइट? तो ये ऊपर का पार्ट हुआ, वैसे माइनस ऊपर वाला पार्ट कॉमन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 कॉमन इंटू वो रूट वाले का डेरिवेटिव। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट समथिंग, तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 और फिर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, दैट इज 2x। 2x ऊपर से कॉमन आ जाएगा, नीचे वी स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर में रूट है, उसका स्क्वायर करेंगे तो ओनली एक्स स्क्वायर माइनस 5 बचेगा, राइट? तो ये तो इजी था ना, आई थिंक प्रेम एंड पार्थ। So you'll be able to manage this now, right? Okay. But sir, I didn't get the same answer as me. Maybe sometimes textbook answer doesn't match. You can ask some of your other friends who have done it. Ask them to post the answer. Okay. And then you can just verify. One more student having 17th and 18th. 17th and 18th. 17th and 18th is also very simple. Whenever you have log term, and inside log, if you have terms in multiplication and division, then the problem becomes very easy, because log का प्रॉपर्टी है ना, log के अंदर अगर कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में होता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर कोई डिवीजन में होता है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर कोई पावर होता है, राइट, तो पावर क्या हो जाता है? वो पावर उस टर्म से नीचे आ जाता है, इजंट इट? हाँ, तो इजी है वो। अभी जो मैंने बताया उससे आप खुद ट्राई करोगे कि मैं करूं? श्रीराज, मैंने अभी जो थोड़ा आपको हिंट दिया उससे यू विल मैनेज इट और आई नीड टू डू इट? लेट मी नो, बिकॉज सिंपल है सच में। ओके, हाँ, यू ट्राई, देन अगर नहीं आया तो फिर वी विल डिस्कस लेटर। हाँ, ओके, फाइन। सो ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर डाउट? सी, डोंट टेक इट दैट कि आई एम नॉट सॉल्विंग इट। सी, वेरेवर, देखो लास्ट लेक्चर में आप जो भी डाउट पूछो मैंने बताया, क्योंकि उस टाइम तुम थोड़े रॉ थे, राइट? आपको बहुत सारे कंसेप्ट मतलब सीखना भी था,
प्रैक्टिस नहीं हुआ था, बट अभी कैसे, अभी आई थिंक this is the fourth lecture and we are still in the first exercise. So I feel now you are in the comfortable position ki you should manage such questions. Okay, हाँ, but still एक बार अभी मैंने हिंट दिया, अगर वापस से कुछ नहीं समझे तो definitely will do it. मैं थोड़ा बीच बीच में पॉज ले लूँगा बिकॉज मुझे बार बार वेटिंग में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, सो अगेन आई हैव टू चेक द लिस्ट, फिर उसमें है कि नहीं है वो, एंड अकॉर्डिंगली आई हैव टू एक्सेप्ट देम. कोई ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि उसने असाइनमेंट किया एंड आई एम नॉट एक्सेप्टिंग इट. या सो yes, then fine, this is the first exercise which we have completed, and as I told you in the last class that this is the exercise which will be used in entire differentiation, even in integration and other chapters, that is chain rule of derivative. So now we will move ahead. Okay, so here there's a concept called as geometrical meaning of derivative. What is the geometrical meaning of derivative? Okay, this is the actual thing that we should know about derivative. Okay, so let us understand this. Okay, all of you please focus 100% here. Let me take some marking. Okay, fine. So geometrical meaning of derivative. What exactly derivative means? Okay, now you can see here in the diagram, this is x-axis and this is y-axis, positive x-axis, positive y-axis. This is, we are talking about first quadrant. Okay, now consider a point P on the curve y equal to fx. Suppose there is a function f of x, okay, a curve, right? So और उसका जो ग्राफ है वो ये वाला ग्राफ है, दिख रहा है आपको एफ एक्स? यस एवरीवन, ये जो आपको कर्व दिख रहा है ना, ऐसा रोटेट हुआ यहां से यहां तक, दिस इज एफ एक्स. ऐसा हमारा एजम्पशन है, मतलब ऐसा एक एफ एक्स हमारे पास है. देन लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन दिस एफ एक्स. तो देयर इज अ पी. ओके, अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अभी कोई फंक्शन होता है, ठीक है, अभी ये जो फंक्शन कैसे ये ग्राफ ड्रॉ हुआ रहेगा? तो देखो हम लोग स्कूल में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते थे. अगर ऐसा होता था y इक्वल टू 2x+1, राइट, तो हम क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे, x लिखते थे और y लिखते थे, x के अलग अलग वैल्यूज हम कोऑर्डिनेट्स लिखते थे, तो y के कोऑर्डिनेट मिलते थे, राइट. अभी y जो है वो हम उसको fx लिखते हैं ना, f ऑफ x, राइट. इसका मतलब जब मैं x पुट करता हूं तो वो मुझे f ऑफ 1 देता है, जब मैं x2 पुट करता हूं तो मुझे f ऑफ 2 देता है, 3 पुट करता हूं तो f ऑफ 3 देता है. यही हुआ ना उसका मतलब. इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि किसी भी कर्व का x कोऑर्डिनेट तो x होता है, बट उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, f ऑफ x होता है. यस और नो एवरीवन? x is x but y coordinate is f of x. So same way, सपोज अगर p मैंने एक फंक्शन लिया, तो ये कर्व पे कोई तो पॉइंट है, तो अगर मैंने उसके एकदम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया तो ये उसका a होगा, यानी x कोऑर्डिनेट होगा. अब एट x इक्वल टू ए फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, वो y होगा.
वो यहाँ वाला पॉइंट होगा, ये सर नो, उसको उन लोग ने एफ ऑफ ए लिखा. हैव यू अंडरस्टूड द सिंबल ए एंड एफ ऑफ ए एवरीवन? ए और ए पे फंक्शन का वैल्यू इज एफ ऑफ ए. वो जो ये अगर मैं स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं वाई एक्सिस पे तो वो रिप्रेजेंट करेगा. ओके फाइन. देन at x equal to a, the coordinates of p are a comma f of a. Okay, let q be another point on the curve. Okay, so we have assumed q as another point on the curve, a little to the right of p. Okay, that is to right of x equal to a. right of p मतलब p से थोड़ा राइट में, p से राइट में मतलब p का जो x कोऑर्डिनेट था वो a था, तो राइट में मतलब a प्लस समथिंग, इजंट इट? a प्लस समथिंग. तो I just assume they said that it's a very small increase, right? Little, right? So I assumed, कभी भी अब मैथ्स में भी अब तक हमने सीखा है कि कभी भी ऐसा स्मॉल इंक्रीमेंट का अगर बात होता है तो वी एज्यूम h. तो सपोज a पे तो p पॉइंट था x इक्वल टू a पे, तो मैंने एज्यूम किया a से थोड़ा सा राइट में, दैट इज a प्लस h पे एक पॉइंट है q. तो q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो उसका x कोऑर्डिनेट तो a प्लस h होगा और उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? f ऑफ a प्लस h. डू यू अंडरस्टैंड दिस नाउ? q का कोऑर्डिनेट्स जैसे जब मैंने p लिखा तो a लिखा, फिर उसका y कोऑर्डिनेट लिखा, राइट? वैसे ही a प्लस h लिखा एंड देन f ऑफ a प्लस h आ गया, राइट? Okay, now let's continue. So a little to the right of p, that is right of x equal to a, with a value increased by a small real number h. Therefore the coordinates of q are a plus h, f of a plus h. Now we can calculate the slope of the secant pq. Now what we do is we have joined these 2 points. Okay, so we want to find out the slope of this line PQ. So we know there are 2 formulas for slope of a line. एक, अगर जिस लाइन का स्लोप फाइंड करना है उसके अगर हमको 2 पॉइंट मालूम हो तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. एंड दूसरा होता है अगर कोई लाइन का मुझे क्या मालूम हो? इंक्लिनेशन मालूम हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, that is angle made by the positive direction of x-axis, then we find out the tan theta, right? And that is the slope of the line, right? तो मैंने अभी यहाँ तो दोनों पॉइंट मालूम है, x, y, तो I will use the original one. Okay, so that will be y2 minus y1, तो f of a plus h minus f of a upon a plus h minus a. Do you understand this point? Come on. So I've written here slope of secant PQ is equal to f of a plus h minus f of a upon a plus h upon a plus h minus a. You can see in the denominator this a and a gets cancelled. I am left with this. Have you all understood up to slope of PQ? Any doubt in any of the concept? Let me know. Okay, all clear, done, fine. Now, let us move ahead. Suppose we make h smaller and smaller than a plus h, sorry, then a plus h will approach a as h gets closer to 0. This we have done it in limits. ये जो a plus h है, ठीक है, जो हमने बोला स्मॉल इंक्रीमेंट, अगर इस h को मैं और स्मॉलर करते जाऊं, मतलब
if h tends to 0, very near to 0, then can I say that in that case a plus h will then tends to a only? क्योंकि h अगर इतना छोटा है कि वो 0 के एकदम नजदीक है, तो a प्लस h a के नजदीक होगा, isn't it बच्चों? क्योंकि फिर h एकदम 0 है, तो if I consider it 0 near to 0, then a plus h is as good as a, right? अभी h को मैंने बहुत छोटा कर दिया, 0.000001 कर दिया, और सपोज a 5 है, तो 5 plus 0.0001 मतलब क्या हुआ? अप्रोक्सीमेटली इट विल बी टेंडिंग टू 5 ओनली, इजंट इट? टेंडिंग में हम कभी भी एग्जैक्टली तो ऐसे भी नहीं दिखते कि एग्जैक्टली 5 होना चाहिए, टेंस टू 5 होना चाहिए, तो वो तो है. ओके, सो लेट्स सी हियर. Again I read this. Suppose if we make h smaller and smaller and smaller, okay, then a plus h will approach a, okay, as h gets closer to 0. q will approach to p. Do you understand this? अगर ये h जो हमने गैप में दिखाया है, ये गैप तो हमने समझने के लिए लिखा है, बट अगर h नजदीक आते गया, you know, close to a, h is very 0, then a plus h will close to a, एकदम नजदीक रहेगा. if it is very near to a, तो ये q point भी it will be very near to p. it means q will also tends to p, isn't it? so q will approach to p. that is, अब लिमिट के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो as h tends to 0, the secant coverage to the tangent at p. yes, अगर देखो ये p है, ये q नजदीक आ गया, नजदीक इतना नजदीक आ गया कि वो जो q और p है वो वेरी एकदम नियर बाय अप्रोच है, तो डोंट यू थिंक ये जो सीकेंट है इट विल लुक लाइक अ टैंजेंट टू द पॉइंट p? क्योंकि अब सीकेंट क्यों दिख रहा था? क्योंकि दे वर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. अभी q इज सो क्लोज दैट इट इज लाइक द सेम पॉइंट, राइट? So it can be considered that, you know, this secant is actually is converging into a tangent. Do you understand this point? Secant converges to tangent. Come on. Secant converges to tangent at P. And so if secant, sir, tangent or point? No, I am talking about Jayashree, PQ. What will happen to this line PQ? Now when Q will come very close to P, very near to P, what about this line? This line will remain the same, right? But then it won't look like a, you know, cutting the curve at 2 points. It will be like, you know, it is just touching at point P, and it may become, you know, a tangent to the curve. Understanding, Jayashree? Because this secant is nothing but line joining P and Q. अभी सपोज Q मैंने एकदम नजदीक ले लिया तो PQ ऐसा हो जाएगा ना, तो it will look like a tangent then. ओके, सो अब ये जो भी हमने सीखा ये कब होगा? इसका बॉटम लाइन क्या है? ऐसे तो डायग्राम में ऐसा दिख रहा है कि P अलग है, Q अलग है, नॉन, बट जो बॉटम लाइन है वो क्या है? When H approaches to 0, Q approaches to point P, so your secant becomes tangent, isn't it? तो इसका मतलब जो हमने पहले फॉर्मूला निकाला सीकेंट के स्लोप का, दैट विल एक्चुअली बिकम्स टैंजेंट का स्लोप, isn't it? सो देखो मैंने क्या लिखा अभी उसके नीचे, therefore slope of secant PQ, slope of secant PQ, बट कभी ये भी तो स्लोप ऑफ सीकेंट है PQ, बट ये स्लोप ऑफ सीकेंट कब मैं ले रहा हूं? जब Q अप्रोचेस टू P. Q अप्रोचेस टू P का मतलब क्या हुआ?
when h approaches to 0, फिर जो इस स्लोप का, इस वैल्यू का आंसर आएगा, that will be the slope of the tangent. Do you understand this? Yes. And as we all know, कि डेरिवेटिव का एक मीनिंग होता है, जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, वो होता है स्लोप ऑफ द टैंजेंट, स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट अ पॉइंट. Yes, slope of a tangent at a point, right? So now what I am finding here, ये क्या मिला मुझे? This is slope of a tangent, right? At a point P when h is approaches to 0. Then I can consider this as it is a derivative of the function at that point. So f dash a. What have you not understood, Prem Bhai, Prem and Parth? Yes, come on. Why we wrote slope of the tangent? Okay, let me take the help of notepad and then tell you in 1 minute. Let me take question one by one. Put your question in everyone here. Others should be दिखना चाहिए ना उनको question. Okay, so suppose, huh? This is my curve, okay, and I have taken a point P here. This is point P, and let me just something like this, okay. So this I am considering point P, and here is point Q. Now if I ask you join P and Q, what will you get? Join P and Q, what will you get? You will tell that, sir, I will get a line which intersect this curve at two different points, right? I can say it is a secant PQ, right? ये समझ में आया, ठीक है. Now what I'm asking you, I'm taking Q. Yes, P और Q में डिफरेंस क्या था? P का कोऑर्डिनेट था a, a f of a, राइट? Q का कोऑर्डिनेट था a प्लस एच f of a प्लस एच. इसका मतलब इन दोनों में h का गैप था, a और a प्लस एच. अब मैं क्या बोल रहा हूं, h इज टेंडिंग टू 0, मतलब h is very 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 near to 0. It means what? अभी तो यहां पर डायग्राम में बहुत कंसिडरेबल अमाउंट का डिफरेंस लग रहा है p और q के बीच में गैप, बट अगर मैंने बोला p और q बहुत नजदीक है, ठीक है, तो चलो दूसरे डायग्राम से अब मैं लेता हूं जिसके अंदर मैं p और q को थोड़ा क्लोज ले लेता हूं, ठीक है. तो सेम कर्व मैं बना देता हूं इस तरीके से, एंड नाउ दिस इज माय p पॉइंट हियर, this is p. Where will be q if h is tending to 0? Very very near here, just adjacent to that. Okay, this will be q. And now if I ask you to join this p and q, what will happen now? Now will it intersect the curve at two different points? It won't. Why? Because they are very close, right?
So then now what do you say? Then secant converges into tangent. Yes, I hope it is clear now. Okay, if there was any other question please put it back, because अभी चैट्स बहुत ऊपर चले गए. पहले भी कुछ क्वेश्चंस कुछ लोग ने पूछा था बट अब वो मुझे विजिबल नहीं है. सो पोस्ट योर मैसेज अगेन. देयर इज अ क्वेश्चन सर, एच और लेस किया माइनस में तो कैन वी अप्लाई द सेम कंसेप्ट इन स्लोप ऑफ आर पी. आर पी किधर है? अभी आर की बात तो हम बाद में करेंगे, ठीक है. और एच और लेस किया वो हम अभी बाद में देखेंगे. ओके, कैसे करना है. हाँ, बट एच टेंस टू जीरो मतलब वो जीरो से लेस नहीं होगा, ठीक है. एच टेंस टू जीरो मतलब इट विल बी वेरी वेरी नियर टू जीरो. और कैसे हमने पॉजिटिव से ले रहे हैं ना, पॉजिटिव से ले रहे हैं तो डेफिनेटली वो नेगेटिव में नहीं होगा, पॉजिटिव साइड से वो वेरी क्लोज रहेगा. सर व्हाई वी रोट स्लोप ऑफ टेंजेंट आफ्टर टेकिंग लिमिट. यू ओनली आंसर मी, अदर शुड आंसर. क्यों हमने लिखा भाई, बता दो जरा. Why we wrote slope of the tangent? Please answer. Please answer. Why we wrote slope of the tangent after taking limit? No Jayashri, no Saisha. I just explained with the help of diagram. Because slope of tangent is derivative of slope of secant. डेरिवेटिव वर्ड अभी अपने को यूज ही नहीं करना है ना. उसका क्वेश्चन नहीं समझे आप लोग. क्वेश्चन क्या लिखा है? Sir, why we wrote slope of tangent after taking limit? हाँ, डेरिवेटिव वर्ड वो यूज नहीं कर रहा है. वो बोल रहा है कि मैं पहले तो लिखा था स्लोप ऑफ सीकेंट, फिर आपने स्लोप ऑफ टैंजेंट क्यों लिखा? वन लाइन में आंसर है उसका. And he's telling also after taking limit. Correct, Bimlesh. Because अगर लिमिट नहीं लिया था तब तो ये वाला केस था ना, ये वाला केस था कि एक पी पॉइंट है ए एफ ऑफ ए और एक पॉजिटिव एच के डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट है क्यू, तो वो सीकेंड हो रहा था. बट जब मैंने लिमिट लिया मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि एच इज टेंडिंग टू जीरो. तो जब एच टेंड्स टू जीरो होगा तो अभी तो डायग्राम में देखा, अब वो सीकेंड रहा ही नहीं ना. तो जो हमने निकाला था सीकेंड का स्लोप वो टैंजेंट का ही स्लोप हो जाएगा. इट्स बट ऑब्वियस. So when h tends to 0, the secant becomes tangent. So we replace slope of secant को slope of tangents कर दिया उसको. I hope it's clear now. Fine. Any other doubt till here now? Anyone? चलो ठीक है. Let's go back to the textbook now. Fine. So now you would have understood कि ये हमने कैसे लिखा. अब मैंने क्या बोला कि ये कंसेप्ट है, ये हमको सबको मालूम है, ठीक है. इट इज नोन टू अस. वो डेरिवेटिव वाला पार्ट अभी आया कि डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट दैट पॉइंट, एट पर्टिकुलर पॉइंट.
तो जब मैं एफ ऑफ एक्स लिखता हूं ना, जब मैं ज्योमेट्रिकली मीनिंग अब मैं बता देता हूं आप लोगों को। अगर आप जब लिखते थे ना यहाँ पर, जैसे मैंने कोई फंक्शन लिखा है एफ एक्स, आप लिखते थे सपोज ये क्वेश्चन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, आप इसका डेरिवेटिव निकालते थे 2x प्लस 2। अब एक्चुअली ज्योमेट्रिकली इनका मीनिंग क्या है मालूम है? ज्योमेट्रिकली इट मीन्स कि अगर ये एफ एक्स कोई कर्व है, सपोज, हाँ ऐसा कोई कर्व है, हाँ, तो ये जो एफ डैश एक्स है वो स्लोप ऑफ द कर्व है एट एनी पॉइंट, क्योंकि यहां पर कोई एक्स और वाई तो मतलब एक्स मतलब इन जनरल हो गया ना, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो दिया नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे क्या होगा टेंजेंट, तो वो एफ डैश एक्स होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। ऐसा नहीं होगा टेंजेंट, वो कट हो गया गलती से, बट इट विल टच, एफ डैश एक्स होगा, एफ डैश एक्स। आप बोलोगे सर ये सबके सब टेंजेंट तो डिफरेंट दिख रहे हैं, सबका स्लोप एक ही कैसे हो सकता है? अरे एक नहीं है, वो वेरिएबल है ना। अभी सपोज यहां पर अगर मुझे स्लोप निकालना है तो इसका मैं एक्सपुट करूंगा, जब इसका स्लोप निकालना है तो इसका एक्सपुट करूंगा, या इस वाले टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो उसका एक्सपुट करूंगा, इस वाले टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो उसका एक्सपुट करूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर अलग अलग एक्सपुट करूंगा तो मुझे अलग अलग डेरिवेटिव मिलेगा ना, वो अलग अलग डेरिवेटिव उस पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप होता है। एवरीवन कम ऑन। समझ में आया आप लोगों को? मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं। जब भी हम डेरिवेटिव में एफ एक्स लिखते हैं तो एफ एक्स एक कोई तो कर्व होगा, एफ डैश एक्स का मतलब हुआ डेरिवेटिव, ठीक है, एफ डैश एक्स मतलब हुआ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, बट ज्योमेट्रिकली उसको हम बोलते हैं इन जनरल स्लोप ऑफ टेंजेंट। इन जनरल, व्हाई आई यूज दिस वर्ड इन जनरल, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट एफ डैश एक्स। हाँ, बट अगर किसी ने बोला कि 2 पे जो पॉइंट है उस पे टेंजेंट का जो टेंजेंट है उसका स्लोप फाइंड करो, इन दैट केस तो फिर सपोज ये वाला पॉइंट 2 है तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वाला टेंजेंट। अंडरस्टूड नाउ? सो उस केस, अब पिछले जो हमने देख रहे हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, उसमें तो हमने पर्टिकुलर टेंजेंट लिया ना, और उस पर्टिकुलर टेंजेंट का पॉइंट भी एक्स ए लिया, तो एफ डैश एक्स की जगह पर्टिकुलर स्लोप आ गया एफ डैश ए। समझा अभी सबको? So we get slope of the tangent at P is f dash A. Okay. Now moving ahead. Thus, the derivative of a function y equal to fx at any point x comma y is a slope of the tangent at that point on the curve. समझ रहा है? अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर उस फंक्शन का मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाला तो उसका एक्चुअली ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है कि आपने उस कर्व के इस पॉइंट का जो टेंजेंट होगा, इस पॉइंट से पास होने वाला जो टेंजेंट वाला लाइन होगा उसका आपने स्लोप निकाला। डू यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? ओके, सो नाउ इफ वी कंसीडर अ पॉइंट a माइनस एच, अगर मैंने लेफ्ट में एक पॉइंट लिया, ठीक है, देन आर क्या क्या होगा, a माइनस एच, एफ ऑफ a माइनस एच होगा। We will find out the slope of pr which will also converges to slope of tangent at p, right? अगर मैंने लेफ्ट से भी किया और फिर मैंने बाद में लिया h टेंस टू 0 तो वही मिलेगा अपने को, राइट? सबको समझ में आया क्या? सो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है डेरिवेटिव का। तो आपको बॉटम लाइन बस एक ही चीज याद रखनी है कि डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया,
डेरिवेटिव का मतलब हो गया स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व. दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. सो हेडिंग डालोगे आप लोग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. सो फर्स्ट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, ये एक फंक्शन है. सो दिस इज इन ज्योमेट्रिकली दिस इज एनी कर्व. ओके, बट जब मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूं, दैट इज dy बाय dx एफ डैश एक्स, एक्स ही लिखा है मैंने, यानी इन जनरल फाइंड करता हूं, तो ये मुझे देता है स्लोप ऑफ tangent, okay, to the curve. Slope of tangent to the curve at any point, at any point, any point. So it is in general slope. I can say right in the bracket. ये हो गया in general, सबके लिए in general slope. सभी tangent का स्लोप यही होगा. बट अगर मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे ही डेरिवेटिव फाइंड करूं, ओके, सो सपोज अगर मुझे किसी ने बोला कि dy बाय डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए क्या होगा, तो वो एफ डैश ए होगा. तो इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, वो क्या है कि ये स्लोप है. ठीक है, किसका है स्लोप, किसका, टैंजेंट का. ठीक है, स्लोप ऑफ द टैंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट ए. एक्स इक्वल टू ए होगा और फंक्शन होगा एफ ऑफ ए. तो ए कॉमा एफ ऑफ ए. सबको समझा ये तीनों का मीनिंग क्या हो गया. तो एफ एक्स हमारा कर्व है, एफ डैश एक्स इन जनरल स्लोप ऑफ द टैंजेंट है, और जब मैं पर्टिकुलर पॉइंट पुट करता हूं तो उस पॉइंट पे जो टैंजेंट होगा बस वो फिर वो उसका एक का है. ये पूरी फैमिली का हो गया, लेकिन एफ डैश एक्स मतलब सबका, और एफ डैश ए मतलब एक किसी टैंजेंट का स्लोप. आई होप इट इज क्लियर एवरीवन. प्लीज नोट इट डाउन and let me know. Okay, so next concept which we are going to study is about derivative of inverse functions. Derivative of inverse functions. We have done inverse functions, okay, in 11th standard also. ट्रिगो का इनवर्स फंक्शन सब थोड़ा देखा था हम लोगों ने. ओके, so here if you read this line para, what they are saying, we know that if if y is equal to f of x is a one-to-one and onto function, then की बात जाने दो. 1-to-1 का मतलब क्या होता है.
We have done it in 11. 1-to-1 function means what? What do you mean by 1-to-1? Come on, tell me fast. One element in A is connected to one element in B. Domain has a match in range. Okay. What else? An element map with B element. Fine, everyone is answering by their own way. शिवम का थोड़ा ज़्यादा करेक्ट था. Rubik, what is saying? Every element of the function is domain is the codomain is most one element. Okay, सिंपल है. फंक्शन में सबसे फंक्शन तो क्या होता है, सारे एक एलिमेंट किसी ना किसी को मैप होने चाहिए, राइट? सपोज ये मेरा डोमेन है और ये मेरा कोडोमेन है, तो फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, इसको फंक्शन बोल सकते हैं. 3 ही पॉइंट था डोमेन के अंदर, तो ये यूनिक एलिमेंट है. दिस गोज टू अ यूनिक एलिमेंट, दिस गोज टू अ यूनिक एलिमेंट, दिस गोज टू यूनिक एलिमेंट. वो क्वेश्चन नहीं है वहां पर, राइट? 1-to-1 में क्या होता है? 1-to-1 का मतलब हो गया, अगर ये पॉइंट, ठीक है, इसका अगर इमेज ये है, तो अब ये किसी और का इमेज नहीं हो सकता. इफ ए गोज टू एफ ऑफ ए, राइट, फिर वो एफ ऑफ ए, बी विल नॉट गो टू एफ ऑफ ए, सी विल नॉट गो टू एफ ऑफ ए. इसका मतलब जो 1-to-1 होते हैं ना, वैसे स्टेट स्टेट बनते हैं. स्टेट मतलब एक इधर जाएगा, मतलब कोई भी एलिमेंट जो इमेज है ना, वो किसी दूसरे का इमेज नहीं हो सकता. समझ में आ रहा है क्या? उसको 1-to-1 फंक्शन बोलते हैं. और ऑन टू क्या बोलते हैं? तो कभी कभी क्या होता है, फंक्शन में कुछ एलिमेंट्स कोडोमेन के रह जाते थे, याद है आपको? देखो, लेफ्ट के तो कोई रहने नहीं चाहिए, क्योंकि डोमेन तो सब मैप्ड होना चाहिए, नहीं तो फिर वो फंक्शन ही नहीं है. यस और नो? बट ऑन टू के लिए कंडीशन रहता था कि ऑन टू में जो कोडोमेन होता है ना, उसके सब के सब किसी ना किसी फंक्शन, किसी ना किसी एलिमेंट के इमेज होने चाहिए. यस और नो? दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑन टू. हम थोड़ा डिटेल में ना ट्रिगो चैप्टर जब हम लर्न करेंगे, तो इनवर्स फंक्शन को मैं और अच्छे से बताऊंगा. बट यहां पर बस आपको नोट रखना है कि अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है ना कोई फंक्शन, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. नॉट दिस वन, आई मार्क द रॉन्ग वन. तभी उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होता है. तो पहली बात क्या बोला कि सपोज ये मेरा डोमेन है, ये कोडोमेन है, यहाँ पर 1, 2 और 3 पॉइंट है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पॉइंट है. पहला तो 1-to-1 होना चाहिए. 1-to-1 होना चाहिए मतलब सपोज ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये 1-to-1 है. बट ये ऑन टू नहीं है बच्चों. क्यों? जो बी का एक 4th पॉइंट है, वो तो किसी का इमेज ही नहीं है, और अब मैं दे भी नहीं सकता क्योंकि सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं. इजंट इट? तो ये वाला फंक्शन जो होगा, इसका इनवर्स नहीं होगा. ये 1-to-1 है बट ऑन टू नहीं है. तो सपोज अगर एक 4th भी पॉइंट होता और वो भी अगर ऐसे मैच हो जाता, तो अब देखो ये 1-to-1 भी है और ऑन टू भी है,
तो इनवर्स एग्जिस्ट होता है। थोड़ा मैंने एकदम लॉजिकल बताता हूं कि ऐसा क्यों सर, ठीक है। हाँ, क्योंकि क्या होता है इनवर्स मतलब, थोड़ा सा अगर हम ऐसा नॉर्मल मीनिंग देखें तो इनवर्स मतलब सर उल्टा देखने का अपने को, राइट। अगर x का समथिंग हियर है तो इसका क्या होगा, वो उसका इनवर्स होगा, इजंट इट। थोड़ा ऐसा लॉजिक लगता है। आप सोचो अगर ये 1 to 1 नहीं होता, हाँ 1 to 1 नहीं होता मतलब फंक्शन होता, बट ये 1 to 1 नहीं होता, मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। ये 1 to 1 नहीं है बट फंक्शन है, क्योंकि सब लोग मैप्ड है। अब प्रॉब्लम क्या होगा, इस पॉइंट का जब मैं इनवर्स बोलूंगा, उल्टा देखने को बोलूंगा, अरे इसका मिरर में क्या दिख रहा है, तो बोलेगे अरे राम भी दिख रहा है, श्याम भी दिख रहा है, अरे कैसा, ये अंडरस्टैंडिंग एवरीवन। मैं एकदम आपको, ये एक्चुअल वे नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन का, बट आपको समझ में आया, सो आई एम यूजिंग दिस एग्जांपल। तो थोड़ा इनवर्स में आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ऐसा कैसा, इसका इधर भी जाता है इधर भी जाता है। और जब इनवर्स फंक्शन बोलता हूं, उल्टा देखता हूं, राइट, तो उल्टे में फिर ये उसका डोमेन हो गया, क्योंकि बोल तो मैं इनवर्स फंक्शन है ना, फंक्शन भी है, और फंक्शन में हमने देखा है कि यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। तो जब मैं इनवर्स बोल दिया तो जो को डोमेन था वो डोमेन हो गया। तो इन दैट केस ये एलिमेंट दो को कैसे जा सकता है, फिर इसका यूनिक एलिमेंट किधर हुआ, समझा क्या एवरीवन? ठीक है, तो ये रीजन हो गया 1 to 1 इनवर्स नहीं होने का। अच्छा, अब लिया मैंने दूसरा जो 1 to 1 है, ठीक है, 1 2 3 है, बट एक पॉइंट एक्स्ट्रा बच गया, इसका मतलब ऑन टू नहीं है ये। अब ऑन टू नहीं है तो प्रॉब्लम क्या हो गया, जब मैं इनवर्स फाइंड करूंगा तो पहले वाले का इनवर्स होगा कुछ, तो दूसरे वाले का होगा, तीसरे वाले का, ये चौथा वाले का क्या होगा? यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसका तो हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे इसका इनवर्स क्या होगा। और फंक्शन के डेफिनेशन में अगर पढ़े, तो अगर मैंने इनवर्स में इसको डोमेन समझ लिया और इसको अगर डोमेन समझ लिया, तो डोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो इस चौथे वाले एलिमेंट का तो इमेज ही नहीं है, फिर तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो इनवर्स क्या होगा? ए हेलो, मैं उल्टे में बोल रहा हूं, ये फंक्शन नहीं है, स्टेट में तो फंक्शन है, बट इनवर्स बोलूंगा तो फिर डोमेन को डोमेन हो गया, को डोमेन डोमेन हो गया। यस, ओके, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। और सपोज अगर ऐसा है तो बिंदास क्या करने का, y इक्वल टू एफ एक्स है, f को उधर भेज दिया, f इनवर्स ऑफ y। मतलब सपोज यहां पर अगर नंबर 1 है और ये मैप होता है 2, तो मैं कैसा लिखता था कि f(1) इज इक्वल टू 2, ऐसे लिखते थे ना। बट अब इनवर्स के लैंग्वेज में अगर इसको पढ़ूंगा तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि f इनवर्स मतलब 2 का इनवर्स फंक्शन 1 है। समझ रहे हो क्या, f इनवर्स ऑफ 2 इज 1, दिस इज जस्ट अ सिंबल। हाँ, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, कुछ ज्यादा ही डिटेल हो गया। ठीक है, इनवर्स फंक्शन। सो आगे क्या बोल रहे हैं देखते हैं। सो इसका मतलब अगर ऐसा हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट करता है। एंड इफ एफ इनवर्स वाई इज डिफरेंशिएबल, अब देखो ये फंक्शन था, हाँ, फंक्शन, हर एक फंक्शन का हमने अभी देखा, डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं। अभी हम एक कंसेप्ट करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। मतलब ऐसा भी होता है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, ऐसा होगा। अभी तक तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा नहीं देखा, सब फंक्शन है सबका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। बट एक एक्सरसाइज है स्पेशली जिसमें हम चेक करेंगे डेरिवेटिबिलिटी ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन डेरिवेटिव है कि नहीं, वो फाइंड करना। ठीक है, आपको लगता रहेगा सर ये ऐसा पॉसिबल होगा, हम करेंगे उसको डिटेल में, डोंट वरी। तो सेम वे जब फंक्शन का डेरिवेटिव हो सकता है नहीं हो सकता वो डाउट है, तो फिर इनवर्स का भी तो हो सकता है ना, कि शायद डेरिवेटिव हो शायद ना हो। देयर इज अ क्वेश्चन सर, इन इनवर्स एफ इनवर्स होगा ना तो सेकेंड स्टेटमेंट हैज -2। नहीं समझा मुझे, जयश्री, व्हाट इज योर क्वेश्चन? नॉट अंडरस्टूड।
that -1 is just a symbol. It is not raised to -1. Second sentence. Second sentence क्या है? If we know that a differentiable, then x equal to f inverse y exists. Sir, second sentence. I will unmute you, Jayashri. Please unmute yourself now. Jayashri, unmute yourself and ask question. Hello, just a minute, Jayashri. Yes, Jayashri, tell me your question. I can't unmute, sir. Okay. Look at the first line, last word. Last word. There is a -2. Where is -2? I can't find -2 anywhere. It's -1, -1. Where is -2 you got? कहीं भी तो माइनस नहीं है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लाइन में. f of -2f. No, there is. ये तो -1 दिख रहा है टेक्स्ट. इधर देखो किधर -2 है. Look at the board here. What I'm showing you here. Where are you finding -2? सेकेंड वन सर्कल. सेकेंड वन सर्कल भी तो -1 है ना बच्चों. It's -1, Jayashri. You don't look at your textbook. Maybe in your textbook it must be -2 अगर old होगा, corrected नहीं होगा तो. Are you looking at your textbook? So it's not -2. I can see it. It's -1. If you want, I can send you the snap also. See, check your WhatsApp. Check group WhatsApp. It's -1 only. Okay. Fine. I was like surprised किधर ढूंढूं -2 में. Okay, चलो, no problem. Okay. So हाँ, I was talking about differentiability. तो मैंने बताया हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कि कभी कभी फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड नहीं हो सकता है. तो अब y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ये इनवर्स फंक्शन है, राइट. तो है तो ये भी फंक्शन, तो हो सकता है इसका डेरिवेटिव हो इसका ना हो, राइट. तो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन. इफ इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स y इज अ डिफरेंशिएबल, मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं अगर वो डेरिवेटिव उसका फाइंड हो सकता है, डिफरेंशिएबल है, then we can find its derivative. In this section, let us discuss the derivative of some inverse functions and derivative of inverse trigonometric functions. तो हम अभी ऐसा assume कर रहे हैं कि जो functions है इनके derivative possible है inverse function के, हमको उसका derivative निकालना है. That's all. ठीक है? Okay. So here are few examples. Let's see these examples. Suppose कोई function है fx, then its inverse is f inverse x. Thus, let gx is f inverse x, right.
ये एफ इनवर्स एक्स को एक फंक्शन दे दिया, नाम दे दिया, जी एक्स बोल दिया उसको. सो इफ वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दीज फंक्शंस, वी सी दैट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, आएगा 2 आएगा. और जी एक्स का डेरिवेटिव मतलब इस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो 2 बाहर, एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव का 1 प्लस 0 1, तो इसका डेरिवेटिव 1/2 आएगा. सो दिस डेरिवेटिव्स आर रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर. समझ में आ रहा है क्या क्या लिखा मैंने यहाँ पर. यस. तो ये एक एग्जांपल वो लोग ने दिया कि कैसे वो लोग ने इनवर्स फाइंड आउट किया. वैसे ही सेकेंड एग्जांपल है, अगर y इक्वल टू एफ एक्स हुआ, एक फंक्शन हुआ, ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x इक्वल टू क्या होगा, रूट वाई होगा, वो मेरा इनवर्स हो जाएगा. x इक्वल टू रूट वाई इज इनवर्स फंक्शन, राइट. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रूट वाई का डेरिवेटिव 1/2 रूट वाई, और एफ एक्स का डेरिवेटिव 2x, एफ एक्स का डेरिवेटिव 2x. तो ये जी इनवर्स वाई हो गया, और ये एफ जी इनवर्स सॉरी जी डैश वाई हो गया, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ जी, राइट. एंड दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एफ. नाउ डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो पहले जी का डेरिवेटिव होगा एंड देन एफ का डेरिवेटिव होगा. तो जी का डेरिवेटिव है 1/2 रूट वाई, तो जी ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट वाई. 1/2 रूट वाई मतलब 1/2 रूट एफ एक्स होगा. बाद में एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स. थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो लोग ने चेन रूल डायरेक्ट किया है. जी डैश वाई मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई, जी 1/2 रूट वाई होता है, तो वाई की जगह समथिंग लिखा, तो वो होगा 1/2 रूट समथिंग. फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, उसको सॉल्व किया, एफ डैश एक्स को 2x लिखा, एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखा, सॉल्व किया, सब कैंसिल हो गया, 1 मिल गया. फिर वैसे जी ऑफ एक्स निकाला, वो 1 मिल गया. So at a point x comma x square on the curve f dash x is 2x and g dash y is 1/2 root y, which is 1/2x, that is reciprocal of derivative of f of x. Yes. So these are just basic examples of what we call as inverse function. Now very important, जैसे हमने एक theorem किया था, वैसा ही एक दूसरा थियरम हम पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का थियरम. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. तो आप लोग ने सबसे पहले ऊपर लिखा था, आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट विच यू हैव रिटन इज दिस ज्योमेट्रिकल मीनिंग. उसके नीचे आप हेडिंग डालोगे आप थियरम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. थियरम डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. और अगर अपने लास्ट वाला थियरम याद है ना, डी एक्स वाला डी वाई वाला, अगर वो आपको अच्छे से आता है तो ये वाला थियरम उसी लाइन में प्रूफ हो जाएगा. कंपोजिट फंक्शन का हमने जो थियरम किया था, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. Okay, so what is that, let's see. First of all, let us understand the statement. Okay, and rather you write down the statement. Okay, write down the statement as it is. जो लिखा है वो statement जरा copy कर लो. Suppose y equal to f of x and so on. स्टेटमेंट लिख कर हो जाएगा तो लेट मी नो.
Let me know if it is done. Okay, so I hope everyone have done it. Now let us understand this. बहुत ही simple है. Let's read this. Suppose y is a function. Suppose, so this is given that y is a differentiable function of x on an interval I. We are considering an interval. Okay. अब इंटरवल का मतलब क्या है, जैसे हमने कोई कर्व लिखा ना, अभी कर्व तो इन लाइक अगर मैं कर्व बनाऊंगा तो वो ऐसा ऐसा कितना भी दूर जा सकता है, ठीक है, इधर भी कितना भी आगे जा सकता है. तो आई एम जस्ट फिक्सिंग सम इंटरवल, यू नो, आई एम जस्ट चेकिंग द डिफरेंशियबिलिटी. I'm talking about the different derivative of this curve only in this interval. Okay, that is the meaning of interval, and we name that interval as I, for example. Okay, so they are saying कि वो particular interval में ये function differentiable है. Okay, and also y is 1 to and on to. ये क्यों डाला वो तो आपको समझ में आ गया है, क्योंकि मैं इन्वर्स करने वाला हूं तो ये दोनों तो होना ही चाहिए, राइट. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेटिव शुड नॉट बी जीरो. मतलब अगर ऐसा कोई फंक्शन लिया जिसका डेरिवेटिव जीरो होता है, राइट, तो हम उस बोलते हैं ना कि वो उसका इनवर्स ही नहीं हो सकता, इनवर्स डजंट एग्जिस्ट. वो समझेगा ऐसा, ये कंडीशन हमने क्यों ऐड किया, राइट. चलो, तो देयर इज नो कांस्टेंट. अरे मतलब देयर इज नो कांस्टेंट ऐसा नहीं है, एफ एक्स तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ कांस्टेंट फंक्शन आल्सो ना. तो अगर y इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन हो गया, इन दैट केस यू कैन नॉट फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन. यस, हाँ, तुम इनवर्स नहीं फाइंड कर पाओगे. तो ये तीन कंडीशन है, 1 to 1, ऑन टू एंड डेरिवेटिव जीरो नहीं होना चाहिए on I in that interval. We are talking about. Also, if f inverse is differentiable on f of I, अगर उसका इनवर्स भी उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स और डेरिवेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन f(x) में क्या रिलेशन होगा, तो वो बोलता है डेरिवेटिव ऑफ f इनवर्स. जैसे हमने ऊपर के दो एग्जांपल देखे, वो क्या होते हैं, ओरिजिनल फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है. यस और नो. अभी दो ऊपर के एग्जांपल में हमने क्या देखा, एक 2 आया तो दूसरा 1/2. इसका मतलब अगर f(x) का डेरिवेटिव 2 आएगा तो उसके इनवर्स का डेरिवेटिव 1/2 आएगा. f(x) का डेरिवेटिव अगर a आएगा तो उसके इनवर्स का डेरिवेटिव 1/a आएगा. तो इनवर्स का डेरिवेटिव होगा f(x) का डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल. इसको या तो मैं ऐसा लिखूं या तो फिर ऐसा लिखूं. अब ये सिंबल कैसा है, तो जब मैं फंक्शन का डेरिवेटिव निकालता हूं तो मैं लिखता हूं dy/dx. जब मैं इनवर्स में कन्वर्ट करता हूं मतलब मैं x इक्वल टू लिखता हूं. जब x इक्वल टू लिखता हूं तो मैं लिखूंगा उसको dx/dy. समझ रहे हो क्या? दिस इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ y, that is dx/dy. This is dy/dx. No, this is also dx/dy. This is dy/dx f'(x). ओके, चलो, तो दे से दैट वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो ये थियरम है, कंडीशन dy. अब क्यों बोला dy/dx नॉट इक्वल टू जीरो, अब समझ में आ गया रहेगा. सर अब वो रेसिप्रोकल होगा और वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो अगर वो जीरो हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, बिकॉज 1/0 इज नॉट डिफाइंड, राइट. चलो, वेरी गुड. नाउ लेट्स सी. अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्रूव दैट क्या करना है. गिवन बस यही है कि y एक फंक्शन है और वो डिफरेंशिएबल है, दैट्स ऑल. हमको प्रूफ करना है
कि अगर वो 1 to 1 ऑन टू 1 और ये सब है तो इनवर्स भी डिफरेंशिएबल होगा और इनवर्स का ये रूल होगा। हमने एग्जांपल देके ऊपर तो देखा, बराबर है, बट वो तो एग्जांपल था, हमको जनरल प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ करने के लिए हम लोगों को ये थ्योरम देखना है। तो ये थ्योरम भी क्वेश्चन में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 to 4 मार्क्स के लिए ये थ्योरम पूछा जा सकता है। तो ध्यान से देखते विद सिमिलर लाइन ना प्रूफ। लेट्स सी, आई विल बी कंप्लीटिंग इन 5 मिनट्स। गिवन दैट एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, मतलब फंक्शन और क्योंकि ऑल्सो लिखा था ना, मतलब ये भी गिवन है, फंक्शन और उसका इनवर्स दोनों डिफरेंशिएबल है, ऐसा गिवन है। ओके, नाउ आई एज्यूम लेट देयर विल बी अ स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स है, एक्स के अंदर स्मॉल इंक्रीमेंट है डेल्टा एक्स। अगर एक्स के अंदर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली वाई के अंदर इंक्रीज होगा, देन करस्पॉन्डिंगली देयर विल बी एन इंक्रीमेंट इन वाई एज डेल्टा वाई। एज डेल्टा एन एक्स डेल्टा वाई इंक्रीमेंट, आई एम कंसिडरिंग इंक्रीमेंट है तो थोड़ा तो बड़ा होगा। इंक्रीमेंट ऐसा तो ही ना बोलेंगे अरे इसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, और कितना इंक्रीमेंट हुआ, 0। अरे इंक्रीमेंट मींस देयर हैज टू बी सम प्लस, राइट, या सम माइनस, इसमें कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, सैलरी में तो बढ़ेगा ही। व्हेन आई से इंक्रीमेंट मतलब प्लस ही होगा। सो डेफिनेटली इट इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वाई नॉट इक्वल टू 0। ये 3 लाइन समझा पहले, यस नो बोलो, कमान। गिवन है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इनवर्स डिफरेंशिएबल है, हमने स्टार्ट किया एक्स को स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स, करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट डेल्टा वाई, दोनों नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर मैंने एक अलजेब्रा यूज किया। क्या अलजेब्रा यूज किया, अरे ए बाई बी लिया मैंने और मैंने मल्टीप्लाई किया उसके रेसिप्रोकल का, कैन आई से इट इज इक्वल टू 1, यस नो। अरे ये तो 6 स्टैंडर्ड का बच्चा भी बोलेगा अरे यस सर, बट मैं ऐसा कब लिख सकता हूं जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। कोई भी फ्रैक्शन ए बाई बी कभी पॉसिबल होगा जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा ना। तो यहां पर मैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को 1 क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है वो जो नीचे है ना डेल्टा वाई डेल्टा एक्स वो 0 नहीं है, क्योंकि वो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट है तो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा तो फिर वो 0 नहीं है, इजंट इट। ओके, नाउ देन व्हाट आई डिड, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस डेल्टा वाई डेल्टा एक्स को उस साइड भेज दिया, उस साइड भेज दिया, 1 अपॉन के नीचे कर लिया, और मैंने लिख दिया कि वो जो नीचे लेकर गया वो 0 नहीं है। फिर मैंने क्या किया, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो इसमें भी डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिया, इसमें भी डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिया, यस। अब देखो यहां पर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, ऊपर 1 को गया, 1 को लिमिट गया तो वो 1 ही रहेगा, नीचे को तो नीचे आ गया डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। याद होगा आपको लास्ट टाइम के प्रूफ में, लेट मी जस्ट इंक्रीज इट्स परसेंटेज, थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखेगा। हाँ, याद है आप लोगों को मैंने बताया था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है, इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखने के लिए जो नीचे डेल्टा एक्स होगा वही डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होना चाहिए। याद आ रहा है आप लोगों को, तभी इसको मैं डी वाई बाय डी एक्स बोल सकता हूं। तो ये वाला जो पार्ट है डेल्टा एक्स तो आ गया तो प्रॉब्लम नहीं है, बट इधर प्रॉब्लम है, इधर, क्योंकि यहां पर डेल्टा एक्स आ गया बट इधर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई है, तो इधर डेल्टा वाई होना चाहिए। तो ये भी हमने किया था कि अगर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है तो डेल्टा वाई भी टेंस टू 0 होगा, तो डेल्टा एक्स को अपने हिसाब से डेल्टा वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अब इससे क्या फायदा हुआ, हमको मालूम है कि y एफ एक्स का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, y एफ एक्स का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज dy बाय dx, सी हियर, और वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर राइट हैंड साइड एग्जिस्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट हो गया मतलब उसको dx बाय dy लिख दिया, एंड हेंस dx बाय dy इज 1 अपॉन dy बाय dx, हेंस द प्रूफ। कुछ भी नहीं है प्रूफ में, डू यू अंडरस्टैंड दिस, कितना सिंपल प्रूफ हुआ। स्टार्ट क्या किया, a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई ए, दैट्स ऑल, ठीक है। फिर डी वाई बाई डी एक्स को उधर भेज दिया, फिर लिमिट ले लिया डेल्टा एक्स टेंस टू 0, फिर वो लेफ्ट वाले लिमिट का डेल्टा वाई लगा दिया, और बाद में राइट वाले को बोल दिया कि भाई डिफरेंशिएबल है तो डी वाई बाई डी एक्स लिख दो, तो लेफ्ट भी डिफरेंशिएबल हो गया, वो डी एक्स बाई डी वाई हो गया, हेंस द प्रूफ। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो लाइन बाय लाइन राइट डाउन इट्स प्रूफ नाउ, राइट डाउन, start writing the proof, come on. Now write this much, then ask me to scroll, then
right at the other part. Statement I have already asked you to write. So I'm assuming you all would have written the statement. Yeah, it's done. Then I will scroll it up. Write down the second part also.
You all can write from your textbook also. Okay. So in homework for today, you will write this theorem twice. Okay. And yeah, do this much, and then we will continue next time. Fine. Thank you very much.